So we have discussed nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction is actually it is the reaction in which a strong nucleophile replaces or displaces a weak nucleophile. So today we will discuss mechanism of nucleophilic substitution reaction. This reaction has been found, this nucleophilic substitution reaction has been found to proceed by two different types of mechanism. इन दो mechanism से ये reaction occur हो जाती है. So it follows two types of mechanism this nucleophilic reaction. The first is substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. We represent this SN2 पढ़ते हैं इसको. And the second one is substitution nucleophilic unimolecular. इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम लिखते हैं SN1. So these are the two types of mechanism जो ये reaction follow करती है. Either it can proceed through SN2 or it can proceed through SN1. So first of all we'll take SN2. हम करेंगे यहाँ पर ये discuss SN2 हम करेंगे discuss यहाँ पर SN2. We will discuss this SN2. I will put an example for this. For example, the reaction between, I will take an example. I will take the reaction between this chloromethane in a CH3Cl plus hydroxide ion. ये hydroxide है. The reaction between chloromethane and hydroxide ion, जब इसके आपस में रिएक्ट होते हैं, I will get CH, मुझे मिलता है मिथनॉल प्लस Cl नेगेटिव यानी हैलाइड आयन. एक बनता है मिथनॉल और हैलाइड आयन बनता है यहाँ पर. So this is the reaction. This reaction follows second order kinetics. इस second order kinetics follow करती है. Second order kinetics का मतलब है the rate of this reaction, rate of the reaction, ये जो इसकी rate है, that depends upon the concentration of both the reactants. That is concentration of the chloromethane and concentration of the hydroxide nucleophile. That means here the rate depends upon both the reactants. That means the substrate and the nucleophile. दोनों पे वो depend करती है. अगर आप कोई भी दो में से change करोगे, the rate will change. The rate of the reaction will change. So we can say that this reaction follows second order kinetics. ये second order kinetics करती है follow. अब इसका मतलब है it has been seen, ये देखा गया है कि it has been observed that this reaction, जो ये वाली reaction है, it follows, it proceeds through SN2 mechanism. ये nucleophilic substitution reaction है, but it proceeds through this mechanism, SN2. Substitution nucleophilic bimolecular. Here the incoming nucleophile जो होता है, incoming nucleophile here, जो यहाँ पर incoming nucleophile होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर incoming nucleophile OH, ये मैंने बनाया ये क्लोरोमीथेन है, यहाँ पर ये कार्बन है. So this incoming nucleophile attacks the partially positive charged carbon. ये partially positive charged carbon होता है, because you know that carbon halide bond होती है polar bond. So this carbon has partially positive charge. So this nucleophile attacks this partially positively charged carbon of the alkyl halide या haloalkane, यहाँ पर उसको वो अटैक करता है, causing the carbon this halide bond, जो एक carbon halide bond है, to break, उसको ये break करता है, carbon halide bond होती है, while forming a new bond, और एक न्यू बॉन्ड यहाँ पर बनती है between OH and carbon, between this nucleophile OH यानी हाइड्रोक्साइड और कार्बन के दरमियान बॉन्ड यहाँ पर डेवलप होती है. अब जो ये दो प्रोसेस है ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड, यहाँ पर जो ये बॉन्ड ब्रेक होती है between the carbon and the halide, एंड जो नई बॉन्ड फॉर्म होती है between the carbon and the nucleophile यानी हाइड्रोक्साइड. These two processes take place simultaneously. बिल्कुल एट अ टाइम ये होते हैं, दोनों प्रोसेस इन सिंगल स्टेप, एक स्टेप में. सो दैट मीन्स both these processes
दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्टेप। यहाँ पर स्टेप होता है सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में होते हैं ये, विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरमीडिएट। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई बीच वाला स्पीशीज यहाँ पर नहीं बनता, कोई बीच वाला रिएक्टिव स्पीशीज यहाँ पर नहीं बनता, सच एज कार्बोकेटायन, कार्बन एटसेट्रा। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बनता। यहाँ पर बिल्कुल ये सिंगल स्टेप में होता है। ये दोनों जो ये दोनों स्टेप्स होते हैं, दोनों प्रोसेस होते हैं, ये साइमल्टेनियस होते हैं इन ए सिंगल स्टेप। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है, यानी यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, यहां पर बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। सो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड व्हेन द कार्बन, जो यहां पर एक कार्बन, ट्रांजिशन स्टेट तब बनता है व्हेन कार्बन, जो यहां पर एक कार्बन होता है एटम, इज साइमल्टेनियसली लिंक्ड टू, यानी बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को भी लिंक करता है और लीविंग ग्रुप को भी ये लिंक करता है, दोनों को। ये लीविंग ग्रुप है, एक तो यहां से जाने वाला है, उसको भी ये कार्बन बॉन्डेड है और न्यूक्लियोफाइल को भी बॉन्डेड है। इस वाले को हम बोलते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है। दिस ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इट इज वेरी अनस्टेबल। ये इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये अनस्टेबल होता है ये ट्रांजिशन स्टेट। व्हाई आप यहां पर भी देख सकते, बिकॉज हियर द कार्बन इज अटैच्ड टू 5 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप्स को अटैच है। कार्बन को सिर्फ 4 ग्रुप ही ये रख सकता है, 5 ये नहीं ले सकता है। सो यहाँ पर इसके 5 ग्रुप्स है, 5 ग्रुप्स को, ये 5 एटम्स को यहाँ पर अटैच है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है ये ट्रांजिशन स्टेट। अब जब एज द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्शन हो जाती है, द कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड जो है ना, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, ये बनना शुरू होती है। एंड द कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड बिगिन्स वीकनिंग, यानी स्टार्ट्स वीकनिंग, ये कमजोर होती जा रही है, ये बननी जा रही है और ये कमजोर होती जा रही है। ये वाली बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप, जो जाने वाला ग्रुप होता है। एज दिस हैपन्स, जब ये होता है, जब ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड जो बनती है और जो कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो कमजोर होती है, अब इससे क्या होता है, एज इट हैपन्स, जब ये होता है उससे क्या होता है, द कन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन, जो कार्बन की कन्फिगरेशन होती है, दैट गेट्स इन्वर्टेड, दैट अंडरगोज इन्वर्जन, यानी कन्फिगरेशन इन्वर्ट होती है, उल्टा हो जाती है कन्फिगरेशन। जस्ट लाइक ऐसी इन्वर्ट होती है वो कन्फिगरेशन, just like या in the same way as the umbrella एक छाता होता है, एक छतरी। umbrella is turned inside out when caught in a strong wind। जब आप कभी किसी स्ट्रॉन्ग विंड में चलते हो अम्ब्रेला लेकर, आपको क्या लगता है, कभी अम्ब्रेला का इनसाइड आउट हो जाता है, बिल्कुल वो इन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर कन्फिगरेशन इन्वर्ट होती है कार्बन की। सो अब हम कह सकते हैं, यहाँ पर जब इन्वर्ट कन्फिगरेशन होगी कार्बन की, इस SN2 मैकेनिज्म में, SN2 अगर रिएक्शन फॉलो करती है, प्रोसीड करते हैं रिएक्शन थ्रू SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पर कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन होती है इन्वर्ट, जब उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो हम कह सकते हैं कि दिस SN2 मैकेनिज्म लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। इससे क्या होता है, SN2 अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फॉलो करेगी SN2 मैकेनिज्म, वहां पर जो कन्फिगरेशन होगी दैट विल दिस SN2 वो इन्वर्ट हो जाएगी, दैट मींस SN2 विल लीड टू इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब जो यहां पर जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, द फॉर्म ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बन एटम बियरिंग द लिविंग ग्रुप, यानी ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन को करता है अप्रोच जो लिविंग ग्रुप को
अटैच होता है, जो लिविंग ग्रुप अटैच होता है, उसी कार्बन को अटैक करता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ बल्कियर ग्रुप्स, अगर या इस कार्बन को बड़े बड़े ग्रुप अटैच होंगे, बल्कियर ग्रुप होंगे अटैच, बड़े बड़े ग्रुप होंगे, यानी सबस्टिट्यूएंट्स होंगे इसको बड़े बड़े अटैच, उससे क्या होगा, द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल गेट इनहिबिटेड, और वो उसको उसमें तो रुकावट आएगी, यानी जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इन पर सब बल्कियर ग्रुप्स, सो उसके अप्रोच में थोड़ा बहुत रुकावट आएगी, वो इनहिबिट हो जाएगा वो उसका अप्रोच। उससे क्या होगा, द रिएक्शन विल स्लो डाउन, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द रिएक्शन विल स्लो डाउन, यानी रिएक्शन बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अब ऑन द बेस ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स, the reactivity of haloalkanes for SN2 reaction, yani for SN2 reaction follows the order, that is प्राइमरी सबसे इसकी ज्यादा टेंडेंसी है टू शो SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी हेलोअल्केन अगर होगा। इसी तरह इसके बाद सेकेंडरी का है, इसके बाद टर्शरी का है, यानी टर्शरी बिकॉज इसमें इसका जो कार्बन विच अटैच टू द लिविंग ग्रुप जिसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दैट इज सराउंडेड बाय बल्कियर ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स को सराउंड करते हैं, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, यानी जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, सो इट विल प्रेफर टू प्रोसीड थ्रू सम अदर मैकेनिज्म, बट इट विल नॉट प्रेफर टू प्रोसीड थ्रू SN2, बिकॉज अगर SN2 से प्रोसीड करेगा, SN2 फॉलो करेगा, उससे उसको जो रिएक्शन है दैट विल बी वेरी मच स्लो, क्योंकि उसके साथ अटैच होता है कार्बन के साथ बल्कियर ग्रुप्स। अगर आपको ऐसे मैं दिखाऊंगा एग्जांपल ऐसे, सो ऐसे अगर मैं लिखूंगा प्राइमरी, ये H लाइक दिस, यहां पर ये कार्बन जो है ना, इसको एक बल्कियर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, एक बल्कियर ग्रुप, ये प्राइमरी है। अगर मैं लिखूंगा सेकेंडरी, दिस CH3CH, ये हो गया Cl, ये CH3, इस कार्बन को दो बल्कियर ग्रुप है, इसका मतलब है इन दो में से ये दिखाएगा SN2 मैकेनिज्म, इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, इट विल नॉट प्रेफर SN2 बिकॉज इसमें दो बल्कियर ग्रुप है। यहां पर जो अप्रोच द न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू दिस वन। अब अगर मैं लिखूंगा टर्शरी, CH3CH3CH3Cl, सो इसमें तीन ग्रुप्स हैं बल्कियर ग्रुप, इस कार्बन को तीन ग्रुप्स अटैच है बल्कियर ग्रुप्स, यानी बल्कियर ग्रुप्स यानी बड़े ग्रुप सबस्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल सबस्टिट्यूएंट्स। सो यहां पर तो अप्रोच होगा सेकेंडरी से भी डिफिकल्ट होगा अप्रोच। सो इन तीन में से जो प्रेफर करेगा टू शो SN यानी टू प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म, दैट इज प्राइमरी। सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी प्राइमरी की, और सबसे कम टेंडेंसी टू शो SN2 मैकेनिज्म वो होगा टर्शरी का। सो दिस वाज अबाउट SN2 मैकेनिज्म। सो SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप है, सो इसके दौरान कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई भी बीच वाली स्पीशीज रिएक्टिव स्पीशीज नहीं बनती, लाइक कार्बोकेटाइन और समथिंग एल्स, कार्बेनियन वगैरह नहीं बनता है वहां पर। सो इससे और एक चीज होता है, जो कन्फर्मेशन होती है ऑर्गेनल वो इन्वर्ट हो जाती है, यानी कार्बन की कन्फिगरेशन होती है इन्वर्ट होती है वो, जब उसको अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल टू गेट ए न्यू प्रोडक्ट। सो दिस वाज अबाउट SN2 mechanism, substitution, nucleophilic, bimolekular. Okay.